اللہ پر توکل ایسے ہے جیسے رمضان کے مہینے میں صرف مغرب کے اذان کے لیے پورا دن بنا کھانا کھائے رہ گئے ہو۔ اللہ پر توکل ایسے ہے جیسے دریائے نیل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہو۔ اللہ پر توکل ایسے ہے کہ کوئی ایک پریکشا کے لیے پورا سال رات دن جاگ کے پڑھا گیا ہو۔ یہ ہے توکل، یہ ہے پاور آف توکل۔ توکل کا جو پاور ہے نا، یہ عام نہیں ہے۔ اللہ پر توکل وہ ہے جو درد میں دکھ میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ انسان توکل رکھتا ہے جو خوشی میں اور دکھ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کو اپنا بناتے ہیں، جو ہر درد میں اللہ کو اپنا حصے دار بناتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور اس درد سے مجھے نکالے، جو ہر خوشی میں اللہ کو حصے دار بنتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا کہ مجھے اتنا خوش نصیب بنایا۔ جیسے کہ گاجا کے لوگ ہو جس کا گھر تو نہیں ہے پر اللہ کا شکر گزار ہے، جیسے کہ گاجا کے اس ممی پاپا وہ والدہ ہو، وہ والد ہو جس کے بیٹے یا بیٹی تو مر گئی ہے پھر بھی الحمدللہ بول رہی ہے، جیسے کہ وہ مسلمز ہو جو اس کو کھانا ملے یا نہ ملے نماز ٹائم پر پڑھ لیتی ہے، جیسے کہ وہ لوگ ہو جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل لانا ایک ہیبٹ بنا لو۔ یہ ہو سکتا ہے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے ایک دن کا کام نہیں ہو۔ توکل، اسٹرانگ توکل جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک دن، ایک مہینے، ایک سال لگ سکتا ہے آپ کو بھروسہ کرنے میں اللہ پر، کیونکہ جو مسلمز ہیں نا، جو بائی برتھ مسلمز ہیں، وہ کوئی لوگ ٹرسٹ کرنے میں تھوڑا تکراتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں، کیا اللہ میرا سنے گا، میں تو گنہگار ہوں۔ پر جو مسلم بائی برتھ تو ہے یا پھر جو کنورٹڈ ہے نا اور اسلام کو جاز کر کے اسلام کو مانتی ہے نا، وہ لوگ نا کبھی تکراتے نہیں ہیں یہ سب بات کے لے کر۔ یہ لوگ نا ہمیشہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا جو کنورٹڈ مسلم جو دوسری ریلیجن سے اسلام میں ریورٹڈ ہے، وہ لوگ ہمیشہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اپنا جو پیسہ ہے، ممی پاپا کا جو ہے لینڈ گھر وغیرہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داری چھوڑ دیتے ہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مدرسہ میں رہ دیتے ہیں، کوئی اناتالے میں رہتے ہیں، کوئی ارفنیج میں رہتے ہیں، پھر بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ہم تو بائی برتھ مسلمز ہیں، میں تو بائی برتھ مسلم ہوں، پھر بھی میرے من میں کبھی کبھی کوشچنز آتے ہیں، کیا اللہ ہے؟ کیا اللہ میرے پاس ہے؟ کیا اللہ مجھ سے دور ہے؟ کیا اللہ میرے بارے میں سوچتا بھی ہے؟ کیا میں جتنا اللہ کو یاد کرتی ہوں کیا اللہ بھی مجھے یاد کرتا ہے؟ جی ہاں، اللہ نے بولا ہے کہ جو مجھے اکیلے میں یاد کرے گا میں اسے اکیلے میں یاد کروں گا، جو مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرے گا میں بھی اسے کیا کروں گا، لوگوں کے سامنے یاد کروں گا۔ جب میں ٹین ایج تھی مجھے بہت کنفیوژن تھا مسلم کو لے کر، مجھے بہت کنفیوژن تھا اسلام کو لے کر، کیوں سر ڈھکنا ہے، کیوں حجاب پہننا ہے، کیوں لانگ ڈریس پہننا ہے، کیوں ٹائٹ ڈریس نہیں پہننا ہے، کیوں اپنی بیوٹی کو نہیں دکھانا ہے لوگوں کو، کیوں باؤنڈری میں رہ کر دنیا چلنا ہے، کیوں رات کو 12 بجے 11 بجے سے پہلے سو جانا ہے، کیوں صبح اتنا صبح اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، یا پھر گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیوں کرنا ہے، کیوں اب اپنی کوئی باتوں کو لے کر جو ایروگینس ہے وہ نہیں کرنا ہے، کیوں ہمیں لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا ہے۔ دھیرے دھیرے سارے باتیں سمجھ میں آ گئی، تھوڑا ٹائم لگ گیا، میں نے ریسرچ کیا، میں نے ٹرائی کیا جاننے کے لیے کہ اسلام کیا ہے، جس کو میں مان رہی ہوں، جس اللہ، جس خدا، جس بھگوان کو میں مان رہی ہوں، کیا وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے؟ کیا سچ میں اس نے مجھے بنایا ہے؟ کیا سچ میں اس نے آپ کو بنایا ہے؟ کیا سچ میں اس نے یونیورس کو بنایا ہے؟ پھر مجھے جواب ملا، بڑے بڑے سائنٹسٹ کا جو ریسرچ پیپرز ہے، جو ان کا ریسرچ کا بکس ہے، ان سب کو میں نے کچھ پڑھا نہیں تو ان کے بارے میں جانا، پھر مجھے پتا چلا کوئی تو ہے ویسا جو مجھے بنایا ہے، کوئی تو ہے ایسا جو آپ کو بنایا ہے، کوئی تو ہے ایسا جو یونیورس کو بنایا ہے۔ اور قرآن میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہے نا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بول کے گیا ہے نا، جو حدیثوں میں ہے، قرآنوں میں ہے، یہ تو ابھی بڑے بڑے سائنسدان نکال رہے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ کر کے نکال رہے کہ یہ سچ ہے، یہ قرآن میں ہے۔ جو دریائے نیل کا کہانی ہے نا، جو کیا فرعون کا کہانی ہے، فرعون کے باڈی میں کیا ملا تھا، سالٹ ملا تھا۔ جو سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ سالٹ ملا کو اسی دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے سوچا کہ سالٹ کہاں سے آیا، پھر لاسٹ میں انہوں نے ریسرچ کر کے بولا کہ یہ شاید کسی دریا میں، کسی ندی یا کسی سی میں ڈوب گئے تھے، اور قرآن میں یہ بات کتنا سال پہلے اللہ نے بول دیا۔ اور پھر وہ جو سائنٹسٹ تھے وہ بھی حیران ہو گئے۔ نیل آرمسٹرانگ جب چاند پہ گئے تھے، انہوں نے بولا کہ میں نے ایک میوزک سنا،
फिर उन्होंने ये दुनिया में आके वो म्यूज़िक पहले नहीं सुना था। फिर उन्होंने थोड़ा ट्रैवल किया, किसी मुस्लिम कंट्री में गए किसी कंसर्ट के लिए, तो जाके वहाँ पे देखा कि सेम म्यूज़िक बज रहा है। तो उन्होंने पूछा ये कौन सा म्यूज़िक है। लोगों ने बोला कि कोई म्यूज़िक नहीं है, ये तो अजान है, मुसलमानों के लिए है, ये अजान सुन के वो लोग नमाज पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला कि यही म्यूज़िक मैंने मुन में सुना था। यूनिवर्स जो है ना हमेशा अल्लाह का सिजदा करता है। हर एक किसी का ना अलग अलग ही तरीका होता है। हम झुक के सिजदा करते हैं, हो सकता है उन लोगों का झुकने का प्रोसेस अलग हो, हमको नहीं दिखता, हमारे पास उतना पावर नहीं है। यही तो है कि गैब गॉड जो हम देखते नहीं है ना, अल्लाह को हम नहीं देखते फिर भी हम भरोसा करते हैं। शायद इसलिए अल्लाह हर बात माफ़ करने के लिए, हर बार माफ़ करने के लिए राजी हो जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या है, मेरे उन भाइयों को मैं याद करता हूँ। फिर उनके कंपेनियंस ने पूछा कि कौन से भाई, हम तो आपके साथ हैं। फिर उन्होंने बोला कि तुम तो मेरे साथी हो, मेरा वो भाई जो मुझे बिना देख कर मुझ पर क्या करेगा, ईमान लाएगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, कुरान, फरिश्ते और आखिरात पर ईमान लाएगा, उसको मैं याद करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितना सारा दुआ किया। जब तक अल्लाह ने उनकी दुआ नहीं कबूल करते थे उम्मत के लिए, तब तक वो अपना सर नहीं उठाते थे सिजदा से। तो कभी आप भी झुक जाओ अल्लाह के सामने, कभी खुद के खातिर, तो कभी इस्लाम के खातिर, तो कभी आपके आखिरात के खातिर। क्या है ये दुनिया, दो पल का है, दो सस्ते के बीच में जो टाइम है ना, वो ये दुनिया का टाइम है। आप सोच लो दुनिया कितना टाइम से चल रहा है, ये यूनिवर्स हजार लाखों ईयर से चल रहा है, और हमारे मरने के बाद भी शायद ये लाखों साल तक चले, पर हम कितना साल के लिए जिएंगे, 50-60 ईयर्स। इसमें से तो 10 साल तक तो बच्चों को ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता, और उसके बाद 50 ईयर्स के बाद हम अच्छे से चल भी नहीं पाते। डायबिटीज़, हाई प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट, कितना कुछ प्रॉब्लम है। तो अल्लाह को याद करो, ढूंढो अपनी लाइफ का जो पर्पस है ना, वो ढूंढो। एक सेकंड में नहीं मिलता भाई, एक सेकंड में नहीं मिलता बहन। लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए ना हमको कंसिस्टेंसी चाहिए, हमको लगातार उस चीज़ पे लगे रहना चाहिए। क्यों आए, क्या लगता है आपको, किसी ने आपको ऐसे फेंक दिया इस दुनिया में, आप फेंकने वाले चीज़ हो, आप ऐसे ही आगे इस दुनिया में। इतना इजी है किसी का लाइफ, किसी का ज़िंदगी, इतना इजी है क्या, नहीं ना। ये कॉम्प्लिकेटेड है, और ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अगर किसी ने बनाया है तो जो क्रिएटर ने बनाया है ना, उसको ढूंढो। चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, एथिस्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी लाइफ के पर्पस ढूंढो कि कौन है जो मुझे बनाया है। जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हो उसको भी किसी ने बनाया है, और इस मोबाइल फ़ोन से, टेलीविज़न से कितना हज़ारों लाखों गुना कॉम्प्लिकेटेड है हमारी बॉडी। क्या ये ऐसे ही बन गया है? अगर वैसे ही बन गया होता तो क्या कनेक्शन, कहीं पे कनेक्शन लूज़ या फिर कहीं पे मिस कनेक्शन नहीं हो जाता क्या? मेरी आँख कहीं और पे नहीं होता, मेरी कान कहीं और पे नहीं होता क्या? आप जैसे दिखने में हो, बहुत खूबसूरत हो, वैसे खूबसूरती से आप किसी को बना सकते हो क्या? किसी पर आप रुख डाल सकते हो क्या मेरे भाई? नहीं ना। तो बहन, हमेशा अल्लाह को याद करो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमेशा अल्लाह को याद करो। याद करो अपनी लाइफ के पर्पस को, याद करो इस्लाम क्या है। इस्लाम को थोड़ा ना आप टाइम दे के, दिन में 1-1.5 घंटा या फिर हाफ एन आवर, जितना भी आपके पास टाइम है, 10 मिनट भी है तो काफ़ी है, वो टाइम दे के आप इस्लाम का जो पर्पस है, अपनी लाइफ का जो पर्पस है ना, वो ढूंढो। अल्लाह के आगे खुद को झुकाना, अल्लाह के सामने आप अल्लाह की अमानत है ना, या अल्लाह को आपको बोलना है कि अल्लाह मैं तेरा अमानत हूँ, मैं तेरे सामने झुक गई हूँ। वो होता है नमाज। नमाज क्या है? वैसे ऐसे आप सिजदा कर रहे हो, रुकू कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मीनिंग क्या है। क्यों कर रहे हो आप रुकू, क्यों कर रहे हो आप सिजदा? किसी के भी सामने कर लोगे क्या? अगर मीनिंग पता ही नहीं है तो किसी के भी सामने करना इतना बड़ा बात नहीं है। अगर मुझे मीनिंग नहीं पता कि मैं किसी इंसान के सामने क्यों नहीं झुकता, पर अल्लाह के सामने क्यों झुकती हूँ, तो क्या पर्पस है मेरे झुकने का? कुछ तो रीजन होना चाहिए। वैसे ही हमारी ज़िंदगी का भी कुछ रीजन है, कुछ पर्पस है। बिना वजह कुछ नहीं चलता इस दुनिया में। जो टाइम चाह रहे हो कभी लौट के नहीं आएगा। आज आप बीमार हो, अच्छे हो, कुछ भी तंदुरुस्त हो, अल्लाह को याद करो, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढो। बस यही ख्वाहिश है कि मेरे हर वो भाई बहन जो ये वीडियो देखेगा, वो अपना एटलीस्ट दिन में 10 या 20 मिनट निकाले अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए, कि आप में जो हो 10 साल बाद क्या होने वाला है मेरे साथ, क्यों हूँ मैं इस दुनिया में, कैसे आई, किस पर्पस से आई, दुनिया का मीनिंग क्या है, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। थोड़ी ना वो पागल है जिसने हमें बनाया है। कोई पागल ऐसे बना सकते हैं कि इतना खूबसूरत सा जो हमारा बॉडी है, माइंड है, ब्रेन है, इतना खूबसूरत चीज़ कोई बना सकते हैं क्या? कोई पागल बना सकते हैं क्या? आजकल तो इतना बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वो भी नहीं बना सकते। तो सोचिए, जिसने हमें बनाया है कितना परफेक्शन होगा उसमें, जिसने हमें बनाया है कितना पावर होगा उसमें। और जिसने आपको बनाया है ना, उसको छोड़ के किसी और के पास जाना ही क्यों है?
क्या कोई पर्पस है कि जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, जिसने आपको बना के इस दुनिया में भेजा है चंद लम्हे के लिए, और बोला है कि दुनिया में जाके मुझे भूल मत जाना, और आप प्रॉमिस ही करके आए हो अल्लाह से कि आप नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, फिर आप भूल गए ना? क्यों भूल गए? नबियों को, रसूलों को अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि वो हमें अच्छा रास्ता दिखाए, जो राइट पाथ है वो दिखाए। फिर हम नबी और रसूलों को रास्ता को छोड़ कर अपना रास्ता बना लेते हैं। हम नाइट आउट में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, दारू पीते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके घूमते हैं, जो क्या है एक्स्ट्रा पैसा जो है कि लोग लगाते हैं कि 10 रुपया में इसमें लगा रहे हो, 10 रुपया उसमें लगा रहे हो, हज़ारों लगाते हैं। तो ये सब इस्लाम में हलाल नहीं है। हमारे लाइफ का पर्पस के साथ ये लोग दूर दूर तक ये सब जुड़ा नहीं है, ये सब बहुत दूर है हमसे। आपका लाइफ का जो पर्पस है ना, वो आप ढूंढोगे ना तो आपको इस्लाम मिल जाएगा। आपका लाइफ का जो पर्पस है ना, वो ढूंढोगे ना तो आपको कुरान का हर आयत का मीनिंग मिल जाएगा। आप कुरान को आप एक बार नहीं तो अरबिक में, नहीं तो इंग्लिश में या फिर हिंदी, जो भी लैंग्वेज आते हो उसमें आप क्या करो, जो मीनिंग है कुरान का वो पढ़ो, और उसका जो डिटेल्स में है ना, हदीस में बहुत सारा हदीस है, बुखारी है, आपको जो भी पसंद है एक एक करके 1-2 हदीस दिन में सुनो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो। आप अपनी लाइफ में अगर पैशन चाहते हो, अपनी लाइफ में सब्र चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशहाली चाहते हो, अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, ये जो दुनिया है ना इतना दौड़ता रहता है ना, पूरा दिन रात दौड़ता रहता है, टाइम जैसे दौड़ता है, लोग भी टाइम के पीछे पीछे दौड़ता है, और ये भूल जाता है कि टाइम को बनाने वाला भी कोई है, मुझे बनाने वाला भी कोई है, जो मुझसे और मेरे टाइम से भी आगे चल रहा है, जिसको पता है कि कल क्या होने वाला है, और जिसको पता है कि मेरे साथ क्या फ्यूचर में होने वाला है। तो मैं उसको छोड़कर, जिसने टाइम को बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, मैं इस लोगों के पीछे क्यों घूम रहा हूँ? ये मैं लोगों को, मतलब वो चपलूसी जो होता है, मतलब होता है कि लोगों के पीछे पीछे घूमना, कोई अमीर लड़का लड़की दिख गया तो उनको पटाना, ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? लाइफ का पर्पस तो नहीं है। थोड़ा टाइम ले लो मेरे भाइयों मेरे बहनों, थोड़ा टाइम ले लो, इस्लाम को अपनाओ और अपने लिए वैसा रास्ता चुनो जो तुम्हारे लाइफ का पर्पस है, जो इस्लाम का पर्पस है, जिसके लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। थोड़ी दिन बाद कब्र में जाना है, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? जब फरिश्ते आके पूछेंगे ये कौन है, तुम्हारा रब कौन है, क्या जवाब दोगे तुम? क्या जवाब दोगे तुम जब फरिश्ते आके तुमसे 3 सवाल करेगा? क्या एक भी सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा? क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते आज कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब हो? क्या तुम पास वक्त में सिर्फ 1 या 2 वक्त की नमाज का तुम हैबिट नहीं बना सकते? क्या तुम धीरे धीरे नमाजों को अपना क्या होता है टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बना सकते कि असर से पहले मैं ये काम करूँगी, मगरिब से पहले ये काम करूँगी, जोहर से पहले ये काम करूँगी, और मैं सुबह उठने की ट्राई करूँगी, मैं जो रात की नमाज है ईशा की नमाज में पढ़ने की, हर रोज़ पढ़ने की ट्राई करूँगी। क्या हमारी ज़िंदगी का जो अब अल्लाह ने जो हमें एक टाइम टेबल बना के दिया है, उसे छोड़ना क्या इतना मजबूरी है? क्या इतना मजबूरी है कि हम हमारे हर नमाज को छोड़ दे और दुनिया के पीछे भागे रहे? कब्र में जब जाएंगे, फरिश्ते जब आएंगे, क्या होगा हमारा? क्या होगा उस रात को जो कब्र का अंधेरा हमें हमेशा हमारे सामने सा जाएगा, जब अमल नमा के नाम में कोई नहीं आएगा? जो अच्छे लोग हैं वो अमल नमाना उनके लिए एक इंसान बन के आते हैं, नूरानी चेहरा लेकर, और उनको क्या करते हैं कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरा अमल नमा हूँ। और अब सोचिए कब्र में अंधेरा में अगर थोड़ा रोशनी आ जाए, आपको कंफर्ट फील कराया कि मैं हूँ तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा, आपको कैसा फील होगा? और उस कब्र में जहाँ पे अंधेरा है, दुनिया को छोड़ के जाना है, सबको छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, अगर उस कब्र में आपको अगर कोई मिल जाए जो आपका साथी हो कब्र का, आपका अमल नमा, तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। तो नमाज पढ़े, खुद के लिए दुआ करे, माफ़ी मांगे अल्लाह से, और जितना हो सके टाइम टेबल मैनेज करने की ट्राई करे। ये ज़िंदगी बस 2 पल की है। कब्र की ज़िंदगी बहुत लंबी है, हशर की ज़िंदगी बहुत लंबी है। पुल सिरात का पता नहीं क्या हाल होगा, चल पाएंगे या नहीं, दौड़ के जाएंगे या फिर कैसे जाएंगे? क्या चल के जाएंगे या फिर रेंगते हुए जाएंगे हम? हशर के मैदान में पता नहीं नमाए अमल किस हाथ में आएगा, लेफ्ट हैंड में आएगा या फिर राइट हैंड में आएगा। आशा करती हूँ कि सबको राइट हैंड में मिल जाए। आशा करती हूँ कि अल्लाह सबको माफ़ कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़े और हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगे। ईमान को स्ट्रॉन्ग करे, तवक्कुल रखे, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारा साथी है, अल्लाह ही है जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, और हमारा हमेशा साथ देने वाला है। गैब से मदद देने वाला भी अल्लाह ही है, मिराकल्स भी अल्लाह का ही है। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ये सब अल्लाह के सामने नहीं चलता। ये सब सिर्फ इंसानों के सामने चलता है। इंसानों को टाइम लगता है काम करने में, टाइम लगता है चीज़ों को संभालने में, अल्लाह को नहीं लगता। अल्लाह चुटकी भर में, मतलब एक पल में सब कुछ चेंज कर सकता है। आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं, मेरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं।
बस मान ले अल्लाह को, दुनिया के पीछे इतना भी ना भागे कि आप भागते 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 आप हैरान हो जाए और कोई ना हो आपको, मतलब कि आपके पास ना हो कि आपको थोड़ा शांति दे, आपको थोड़ा पीसफुल बातें बोले। पर आप और अल्लाह को याद करेंगे और दुनियादारी भी निभाएंगे एक साथ में, तो इंशाल्लाह बहुत पीसफुल रहेगा आपका माइंड, आप बहुत शांति से रह पाएंगे। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दे। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह।